अभी कल ही एक लड़का बेचारा आया, स्पेशली ही केम फ्रॉम गोरखपुर टू मीट मी। अब वो आया डायरेक्ट सर, अब पकड़ा और रोने लगा। मैंने कहा ठीक है, डोंट क्राई डियर, व्हाट हैपेंड? कहा नो सर, यू विल नॉट अंडरस्टैंड माय फीलिंग। तो ही स्टार्टेड क्राइंग और रोता रहा पकड़ के। फिर मैंने पूछा रो क्यों रहे हो? कह रहा मतलब आपको देख रहा हूँ, आपको छू रहा हूँ और मैं अपनी वैल्यू उतनी नहीं समझता हूँ। क्यों पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्ड है, क्यों कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, क्यों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है? क्योंकि हर एक कोर्स में, हर एक ट्रेनिंग में ये बताया जा रहा है, रिमूव योर शाइनेस, अपनी शर्म को निकालो। Oh, there was a line I just heard and I just read that until you learn, you stay young. जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप जवान रहते हैं. So if you want to stay young, you have to learn. Because if you become over a workaholic, you become less productive. You become a labor, mazdoor. As mazdoor goes from 8 to 8, he works. He has no other thought, no other process. You are a mazdoor. That's a weakness of yours. First of all, you have to do R&D, research and development on 4P, place, promotion, product, price. And then you maintain CLV. Customer lifetime value. You all are on the path of learning improvements. You all are gaining something, learning something. That's a very good thing. That's the best thing I could say. And you all are also putting your 100% efforts to improvise and improve yourself, to develop yourself. And that's a very good thing I could say. Because there was a line I just heard and I just read that until you learn, you stay young. जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप जवान रहते हैं. So if you want to stay young, you have to learn. There is no compromise in learning, right? Whether you learn through music, through dance, through drama, through art and culture, art and craft, through lectures, through motivation, through teachers, whatever you are learning, you have to learn. So today what we are going to do, what we are going to discuss about a very important thing, that is SWOT analysis. See, if I just ask you a question, like, like for example, if you're going to do a startup, अगर आपको एक स्टार्टअप करना है, if you want to launch or start a company, so what do you have to do first? First of all, you have to do R&D, research and development on 4P, place, promotion, product, price. After that, you initiate and then you maintain CLV, customer lifetime value. Anyway, it's a business language, but I'm coming to this language. SWOT analysis is very important because S for strength and W for weakness, and O for opportunity, and T for threats. Whenever you go to do something, for example, if you talk about developing your personality or cracking your interview or developing your confidence, public speaking, so what are your strengths? See that. Your strength, for example, if I talk about my strength is confidence. I can speak, I can sing, I can dance, I can lecture. That's my strength. So yeah, please. I know my strengths and I actually try to, improvise it more and more, develop it more and more. So what you need to understand or what you need to know, that what are your strengths? Note in pointers. Note in pointers, whatever your strengths are. You are well in communication, you are well in dress up, right? You are well in behavior, you are well in business, you are well in confidence, you are well in, social skills. So what do you have to understand? First of all, you have to just, do one analysis, and the most important thing is a strength. Like for example, if you want to give confidence in free of cost to somebody, so what do you have to do? You just remind him or her about his or her strengths. He or she will be automatically confident. I'll ask you a question. Have you ever seen a lady stitching cloths? Have you ever seen a lady stitching cloth or embroidering cloth? You have seen? She's very confident at the time of using machine, hand machine or leg machine. She's very confident. She's using the machine. She's very confident. She's talking to you. And she's bro. Oh, bro. So she's very good because it is her strength. And the moment you say, hey, auntie, you tell me that how are you very perfect in this? Actually, how can you just do it in a very proper way or accurate way? She will be saying that, it's my strength. I have been doing it for a long time.
So when you ask me a question that, Abdullah sir, how you are able to speak this smart fluent English or a fluent English, I'll say that it's my habit and actually it's my practice because I've been mentoring and training for last 13 years. That's why I can speak without any delay and procrastination. I can speak it. This is what you need to understand, that whatever your strengths are, सबसे पहले जो SWOT एनालिसिस में स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स में आपके जो भी स्ट्रेंथ है आप उसको नोट डाउन कर ले. उस पे आपको क्या कर सरसरी निगाहें डालना है और उसको एडमायर करना है. Whenever you wake up early in the morning, you admire your all strength. Hey God, thank you so much that you have given me good family. God, thank you so much that you have given me good confidence. Hey God, thank you so much that you have given me knowledge, information, mind, mentality, mental attitude, mental power. You have given me stamina. You have given me body power. You have given me energy, enthusiasm, motivation, inspiration, and you have given me final great spirit that I can do anything in my life. These are the strengths. And you admire the God. You pay gratitude to the God. ऐ खुदा तेरा शुक्र है जो तूने दिया, बहुत कुछ दिया और नहीं दिया वो मैं कमा लूंगा. So you have to just understand. ये आपको समझना होगा. तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, मैंने यहाँ पे 6 लिखा है. मेरे ख्याल से आपको ऊपर वाले ने 15, 20, 25, 100, 200, 1000 स्ट्रेंथ दी होगी. उसको नोट करो. You understand? किसी के पास आंखें नहीं है तो उसके पास मजबूत हाथ है. मजबूत हाथ नहीं है तो किसी के पास मजबूत आंखें. Whatever you have, admire it. उसे admire करें. Now, coming to the next point, SWOT, and then come to the next point like weakness. See, I'll definitely tell you that why we are here. For example, if you say that, excuse me, I'm here just because I watched your video. That's a fake thing. You watch so many people's videos. Like, can you go to everyone? Of course not. And why to go? Why to invest? Why to waste money? But if a super. Thank you so much. So when you just talk about this kind of visits or this kind of interaction and for training, if you go daily on daily basis, Monday to Friday, daily you are going spending 100 of rupees in the metro cards and all these, like you're just wasting your time or investing your time. You're coming here for particular purpose, intention, and you have great vision, mission, reason. Why are you coming here? Because you are coming here, you have some weaknesses. जो खामियां है, जो कमियां है, ऊपर वाले दूर कर दे और इन कमियों को दूर करके मुझे मशहूर कर दे. You just remove all my weaknesses and you make me popular and most powerful. तो write down your weakness. Weakness, हर एक weakness लिखो. अब इसमें भी weakness में भी ranking दो. What is weakness number 1? I am a shy guy. मैं शर्मीला हूं. I am introvert. मैं introvert हूं. क्या है weakness? अच्छा, जब तक आप अपनी कमजोरियों का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तब तक आप कभी भी जिंदगी में इंप्रूव नहीं कर पाएंगे. क्योंकि टीचर ट्रेनर क्या है ना, आजकल लोग बड़े शॉर्ट लोग टेम्पर्ड हैं. लोग आजकल ज्यादातर बिजनेस माइंडेड होते जा रहे हैं. हम जैसे लोग ईमानदार लोग कम मिलेंगे. राइट, लोग बिजनेस माइंडेड होते जा रहे हैं. तो आपको टाइम कोई देगा नहीं. जब तक कोई पर्सनल टाइम देगा नहीं तब तक आपकी कमजोरियां वो समझेगा नहीं. जब तक कमजोरियां समझेगा नहीं तब तक आपकी कमजोरियों पे काम करेगा नहीं. तो आपकी कमजोरियां, अगर आप 20+ है, 18+ है, यू हैव टू फाइंड आउट योर वीकनेसेस. आपको अपनी कमजोरियां खुद से फाइंड आउट करनी है. That what are my strengths? What are my weaknesses? Shy, introvert. Right, I am, over logical. Yeah, I am over emotional. I am reactive. I am credulous. I am egoist. I am rigid. I am narcissist. You see, there are multiple weaknesses. Now find out your weakness. I'll sit alone and I'll try to find out my weakness. What's my weakness? Okay. I think I'm less in business. That may be my weakness. I'm less in finance management. That may be my weakness. I am less in giving time to my family. That may be my weakness. I'm workaholic. Overworkaholic. From morning to night, I am overworkaholic. This may be my weakness. Because if you become overworkaholic, you become less productive. You become a labor, mazdoor. As mazdoor goes from 8 to 8, he works. He has no other thought, no other process. You are a mazdoor. So that's a weakness of yours. Now, shy. जिसने किया शर्म उसका फूटा कर्म. So you have to understand that the shy nature is absolutely very bad. But earlier, when we talk about earlier, right, we used to shy in front of those people or those girls and boys because we used to be like, okay, if you feel shy, he or she will admire us. किसी को देख के नजरें झुका लेना
और शर्मा के अंदर चले जाना, और आपको लगता था कि शर्म ही मेरा इज्जत का लिबास है। लेकिन आज दिल्ली जैसे शहर में अगर आप इस लिबास को पहनेंगे तो या तो लोग आपको निकाल देंगे या इस लिबास को निकाल देंगे। दैट इज वाई यू कैन नॉट गो विथ शाइनेस। आप शर्म के साथ नहीं जी सकते इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में। क्यों पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्ड है, क्यों कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, क्यों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है? क्योंकि हर एक कोर्स में, हर एक ट्रेनिंग में ये बताया जा रहा है, रिमूव योर शाइनेस। अपनी शर्म को निकालो, हटाओ, फेंक दो इसे तोड़ के। शाइनेस इज नॉट रिक्वायर्ड। द सेम अब्दुल्ला यूज्ड टू शाई वेरी मच अर्लियर। आई वाज लाइक, आई यूज्ड टू गो टू द रिश्तेदार, वो खाना पूरे पूरे दिन खाया नहीं, रिश्तेदार पूछते थे खाना खा लो, नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, भूख नहीं है। और आप पता क्या चला, सोते हुए रिश्तेदार को गाली दे रहे, क्यों नहीं खिलाए, जबरदस्ती थोड़ा कर लेता तो खा लेते। इतनी शर्म। that time I was very, actually, very regretting and remorsing. I was remorsing, पश्चाताप I was doing, right? So introvert, being introvert is sometimes okay. जैसे आप अगर तन्हाई और अकेलेपन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक होता है loneliness, आपको पता ही होगा, और एक होता है solitude, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो एक जय शेट्टी इज द राइटर एंड ही हैज रिटन 8 रूल्स ऑफ लव। उसने प्यार के 8 नियम लिखे हुए हैं। उसमें एक फर्स्ट चैप्टर में उसने डिस्क्राइब किया हुआ है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। जब आप अकेले हो, तन्हाई काट ले आपको, तो आप लॉनलीनेस फील कर रहे हैं, और जब आप अकेले हो और इतिहास रच दे तो आप सॉलिट्यूड में, राइट? एंड आई थिंक द बिगेस्ट कंपनी ऑफ योर इज यू। सबसे बड़ा साथी अगर आपका कोई है तो आप है, क्योंकि जब आप अपने आप बैठते हैं अपने आप अपने साथ में, यू फाइंड द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप खुद का बीट वर्जन बांटो। So now what you need to understand? You need to understand that introvert. So being introvert is absolutely not good because the moment you don't approach, nobody gives you anything. Introvert से सबसे पहले ब्रेक करने का इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला, स्टार्ट अप्रोचिंग। आप अप्रोच करना सीखो, सबको अप्रोच करो, गरीब अमीर, लेफ्ट राइट, एनीथिंग, राइट, LGBT, मेल फीमेल, राइट, स्मॉल यंग old, but you have specific people for your approach. That's wrong. You are approaching, you're not going to get married. आप अप्रोच कर रहे हैं, शादी थोड़ी ना कर रहे हैं। तो इट्स गुड टू अप्रोच एंड अप्रोच एवरीवन। So this is the best way to break the actually introversion. ओवर लॉजिकल, प्लीज डोंट बी दिस, राइट? अगर आप ओवर लॉजिकल हो जाते हैं तो हर एक कदम पे आपको फायदा नजर आएगा, और जब हर कदम पे आपको फायदा नहीं मिलेगा तो यू विल ऑल्सो बी एंजाइटी फुल एंड एंशियस। आपको एंजाइटी होगी एंड यू डोंट नीड टू डू दैट। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओवर इमोशनल, ओ माय गॉड, जितना आंसू दिखाओगे दुनिया उतना ही रुलाएगी। स्टॉप योर टीयर्स, दिस विल गिव यू सम पावर। ये आपको कुछ ताकत देंगे, इसलिए स्टोर इट, इसे स्टोर करो। रिएक्शंस मत दो। 2 तरीके के लोग दुनिया में होते हैं, पर्सनैलिटी कहती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, वन इज रिएक्टिव पीपल एंड अनदर इज प्रोएक्टिव पीपल। ये आपको वर्ड्स मिल जाएगा, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक लिखी गई है एंड दैट इज अ वेरी गुड बुक। यहाँ फुटपाथ पे भी मिल जाती है 100 रुपए में। तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बताया गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव पीपल। Reactive means all the people who are around you and they always talk about bad things. They always talk about, oh, excuse me, it's scorching sunlight, I can't step out. It's raining, I can't go. Sorry, it's morning, it's afternoon, it's evening, it's night, I can't go, I can't make it. That's called reactive people. तो रिएक्टिव लोग यहाँ पे गड़बड़ होते हैं और प्रोएक्टिव लोग हमेशा सही होते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी। जैसा आपको मान लीजिए अभी स्पीच वाला, ऑडिटोरियम वाला मिल रहा है, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक तो गायब भी हो जाएंगे, एक कैटेगरी ऐसी है जो गायब भी हो जाएंगे, मुझे लेना देना नहीं है। हम लोगों को कोई मौका यहाँ से लेके गोवा, दुबई तक मिलता है तो हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। आप लोग को फॉर्मेलिटी करनी है। फर्क तो इस में ही इतना है, नहीं तो मैं वहां बैठा होता, आप यहाँ खड़े होते हैं। आपकी उम्र में मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी उम्र में आप वहां बैठे हैं। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं। मैं सुना भी रहा हूँ, पैसे भी ले रहा हूँ। ये तो फर्क है। दिस इज द डिफरेंस, दैट बिकॉज you are not having that proactive mindset and you must have that. After that credulous, ये बहुत पड़ता है यार। और डेफिनेशन कर दीजिए, फिर से बता दें। प्रोएक्टिव मतलब एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो रही है, राइट? बहुत इजी एग्जाम्पल बताऊंगा। आपकी शादी हो रही है और आपको ऑन टाइम पे, बड़े एग्जैक्ट मोमेंट पे पता चलता है कि आपकी जो वाइफ है, जो बीवी है, उसका वजन 160 किलो है।
अब यहाँ पे दो केस आता है, एक तो मैं शादी नहीं करूंगा, भाग रहा हूं मैं, या दम लगा क्या ईशा? अय्या दम लगा गया इसे। तो आपने कहा कोई बात नहीं, आई विल एक्सेप्ट माई वाइफ, चाहे वो 160 किलो की हो चाहे 260 किलो की हो, राइट? तो ऐसे इंसान को प्रोएक्टिव बोलते हैं, जो ये फिक्र नहीं करते कि कितना वेट है। एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव, इस एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव, राइट, यू नो, सुपर प्रोएक्टिव, अल्ट्रा, अल्ट्रा हाँ, प्रोएक्टिव एग्जांपल। प्रोएक्टिव एग्जांपल आल्सो, एग्जांपल भी ठीक है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? ओवर लॉजिकल एंड जजमेंटल? हाँ, वेरी नाइस, ओवर लॉजिकल एंड जजमेंटल। एंड जजमेंटल, ओवर लॉजिकल मे बी इन एवरीथिंग। मेरे को पता है, मैं दोनों, अब मेरा एग्जांपल दो। आप आपका एग्जांपल दो। आप कुछ भी इनडायरेक्ट फायदे के लिए नहीं करते हो, बहुत कम। आप डायरेक्ट फायदे के लिए ज्यादा चीजें करते हो, इसलिए आप अपने दिमाग पे, अपने दिल पे वजन डाल दिए हो बहुत सारा। डायरेक्ट फायदा, जैसे डायरेक्ट फायदा मतलब मान लो कि आप को कहा जाए यार अभिषेक लेट्स गो एंड लेट्स हैव अ वॉक टू इंडिया गेट, तो यू विल हैव मल्टीपल लॉजिकल रीजंस। इंडिया गेट, ऑलराइट, व्हाट्स द बेनिफिट? ओके, सो विल बी गोइंग देयर, आई एम सॉरी, सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना वक्त लगेगा? मेरे पास समय नहीं है, अभी मुझे किताब पढ़नी है, मैं इंडिया गेट नहीं जाऊंगा, समय बताओ, लॉजिक बताओ, फायदा क्या है? इतनी सारी चीजें आप करेंगे तब तक वो इंसान निकल पड़ेगा, राइट? तो दिस इज द सेम पॉइंट कि आप यहाँ पे ओवर लॉजिकल है, जजमेंटल नहीं है। नहीं, अगर जैसे मान लीजिए, डिबेट नहीं कर रहा, हाँ, मेरा एक पूरे वीक का स्केड्यूल है कि मुझे ये चीज़ें पूरी करनी है, और इंडिया गेट जाने का मेरा मन है, बट मेरे लिए वो मेरी प्रायोरिटी है, जो काम है, किस लिए मैं मना कर रहा हूँ। बट मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं एक्साइटेड भी, एक्साइटेड है। हाँ, बट मैं अपने शेड्यूल को ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो ये ओवर लॉजिकल है, ये क्या है? क्योंकि शेड्यूल होना जरूरी है। मैं आपको आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ये क्या है? सर्कल। सन का साइकिल का चक्का है, इट्स अ व्हील ऑफ बाइसिकल। जब तक चलता रहेगा तब तक साइकिल चलती रहेगी, चक्का रुका, साइकिल गिरी। आपका शेड्यूल गड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गड़बड़ होगा तो आप रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, आपकी सफलता रुक जाएगी। बट ये साइकिल बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती है, ब्रेक। साइकिल का चक्का चलता रहना चाहिए, लेकिन वो ये भी साथ में है ब्रेक, ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसे ही चलाते रहो, और ऐसे ही चलाते रहेंगे तो आप थक जाएंगे ना। थोड़ा रोको, थोड़ा ब्रेक मारो, फिर से चालू करो और फिर से चलाते रहो, उसके बाद जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, मजा आ जाएगा। मतलब आप अपने स्केड्यूल को फॉलो करते रहो, लेकिन उसके बीच में जो है ब्रेक दो, इसने को भी, जैसे इंडिया गेट जाना एक एक्टिविटी में का पार्ट है, तो वो भी फन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आप लंच डिनर डेली करते हैं, 20 रुपए की कभी आइसक्रीम खा लीजिए बाहर से, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो, राइट? मतलब ये चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे मैं अभी गाना गा रहा था बिफोर द क्लास स्टार्टेड, तब ये एक तरीके से बेवकूफ़ी भी हो सकती है, एनर्जी है ना, लेकिन एक तरीके से मेरे लिए मैं समझता हूँ कि ये भी पार्ट ऑफ लाइफ, मैंने कुछ नया कर दिया। क्रेडुलस, क्रेडुलस मीन्स हु इजीली बिलीव्स समवन ब्लाइंडली। आजकल इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, यू आर वेरी क्रेडुलस, है ना? किसी को देखा और यकीन कर लिया, बाद में उस सामने वाले ने डिच कर दिया, और जब आपको डिच किया तो आप पिच कर गए, और जब आप पिच हुए तो आप स्विच हो गए, राइट? और जब आप स्विच हुए तो सामने वाला फिर री अटैच होना, जैसे उसने री अटैच हुआ आप डिटैच हो गए, वो रोता रहा आप हंसते रहे। अंडरस्टैंड, बड़ा फॉर्मूला है साइकोलॉजिकली, बट एनीवे, ये जो क्रेडुलस है, दिस इज एक्चुअली नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी चीज नहीं है। बट साथ में ये भी आता है ओवर एज्यूमिंग, ये भी सही नहीं है। पहले क्या होता था, पहले मैं जब मेरे पास जो भी आता था, आई यूज्ड टू बिलीव एंड ट्रस्ट एनीवन तुरंत। अब थोड़ा समय देता हूँ, बट इतना समय देता हूँ कि उसको दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। और ये वाले ज्यादा, और इसमें खासकर लड़कियां ज्यादा होती, गर्ल्स आर मोर क्रेडुलस बिकॉज दे आर इमोशनली वेरी वेरी इजी टू बी ट्रैप्ड। किसी ने कुछ कहा, बाबू सोना, ट्रैप, बाबू ने थाना थाया, ट्रैप। तो इनके साथ जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, राइट? के सर जैसे इन्होंने बोला कि एक मेरी वीकनेस है शाही वाली, तो ये तो सबसे बड़ी वीकनेस है ना, कि वीकनेस पढ़ के अपनी वीकनेस पता लगी। हाँ, ये भी बात है, ये भी बहुत बड़ी वीकनेस है, सही बात है, जब कोई बताए तब वो वीकनेस पता चले,
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे आप कैसे उसके लिए अभिषेक पता नहीं था कि वर्ड ये है। हाँ, अच्छा वीकनेस बताती है, रिमाइंड हो गया थोड़ा। ही हैज बिकम एक्सट्रोवर्ट नाउ, राइट? एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट, इगोइस्ट, रिजिड, रिजिड पता ही है, नार्सिसिस्ट पता है ना? नार्सिसिस्ट लोग की भी तादाद बहुत बढ़ रही है। सेल्फ सेंटर्ड, आई एम राइट, आई एम राइट, डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब रिजिड का अल्ट्रा लेवल, रिजिड का अल्ट्रा लेवल। और ये बहुत गड़बड़ चीज, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो एनालाइज योरसेल्फ एंड रिमूव दीज हैबिट्स ऑफ योर्स। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एस एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डब्ल्यू, राइट? होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। एंड नाउ O for Opportunity. opportunities, I think. See, there are two situations. One, opportunities fall, and one, opportunities call. One opportunity fall, one opportunity call. जैसे मान लीजिए यहीं पे अचानक कुछ हो गया, या मैं मान लो वीडियो बना रहा हूँ, कोई वीडियो तड़ाक से मिलियन चली गई, जैसे अभी एक गई थी 3-4 मिलियन, तो ऐसे चली गई मान लो, तो वो अपॉर्चुनिटी फॉल है, आपकी गोदी में झोली में गिर गई। एक अपॉर्चुनिटीज कॉल है, जैसे मुझे मलेशिया जाना था, अपॉर्चुनिटीज कॉल थी, बट मैंने कैंसिल कर दिया अनफॉर्चुनेटली। गोवा जाना था, मैं गया, तो दैट वाज अपॉर्चुनिटीज कॉल। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज कॉल, एंड आई थिंक आप लोगों को इस पे रिसर्च करते रहना चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है, इवेंट हो रहा है, वर्कशॉप हो रही है, सेमिनार हो रहा है, मेरा कंपटीशन हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, यू शुड सर्च इट एंड यू शुड गो देयर। आपको वहां जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज अपॉर्चुनिटीज कॉल। एंड मे बी इफ यू स्पीक देयर एंड इफ यू स्पीक इन अ रिमार्केबल वे और इनक्रेडिबल वे, यू मे बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। भाई, जितने लोग आज हैं सुपरस्टार, उन्होंने कहीं कोशिश की थी, इसलिए आज वो है। तो opportunities fall, opportunities call. Now, if you just talk about the opportunities, always start from very small, because there is a point that many a little makes a mickle. बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे से जाए। So when you talk about, if you want to just fulfill or fill your ghagri, you have to start from small drop of water. Even a drop of water falls continuously, it may just make a big dam or pond or river. This is what about the continuity and consistency has power. Start from small and keep on working on that. And then there are two words which is very important: upgrade and update. Upgrade and update. Always, always. You don't look good in t-shirt, change it, wear shirt. You don't look good in shirt, change it, wear blazer. Upgrade and update. If you are speaking like this, hello guys, today I will talk about like this, then you just change them. Hello guys, today I will talk about like this. Hi, I will talk about you today. Change it. और बड़ा आसान है change करना. Like if you say that, oh, I'm sorry, I've been trying for my voice modulation, I am not able to do that. I feel it's very easy actually. But through self-introspection, और मैंने एक कहानी बताई थी ना, हम सलमान गोवा में थे, उसके बाद जो है कि वहाँ पे हम लोग ऐसे घूम रहे थे बीच पे शाम में, तो कैमरा लेके ऐसे टांग गए, हम लोग को लगा कुछ मस्ती मजाक कर लिया है, तो हम लोगों को कैमरामैन किसी ने समझा, बोला कि एक्सक्यूज मी, आप फोटो खींचने रील बनाते? तो हम लोगों ने हाँ बना देंगे। तो हम लोगों ने शुरुआत कर दी, 40 मिनट के अंदर हम लोगों ने 2300 रुपीज वी मेड, हमने बनाया था 40 मिनट के अंदर। हम फटाफट फटाफट फोटो खींचा, बोले समंदर से इधर से आओ, उस लेडी को बोला इधर से आओ, ऐसे करके ऐसे आओ, मैं बोला उसके हस्बैंड को बोला तुम ऐसे हाथ करके ऐसे आओ। हमें क्या पता था कुछ फोटोग्राफी वगैरह, बट ऐसा दिख रहे थे कि वी आर द प्रोफेशनल प्रो अल्ट्रा लेवल ऑफ फोटोग्राफर्स, और दे ऑल्सो बिलीव्ड अस। फटाफट पेटीएम किया, फटाफट फोटो खींच कर ट्रांसफर भी नहीं किया, आके यहाँ पे दिल्ली में ट्रांसफर किया। एंड नाउ व्हाट वाज द पॉइंट? छोटी सी पहल, मैं नहीं कर रहा हूं मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूं, बट आई एम सेइंग कि दैट इज अ स्मॉल स्टेप दैट यू कैन अप्लाई टू एक्चुअली क्रिएट बिजनेस और क्रिएट सम प्रेजेंस। वेरी, तो अब मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसे कोई उठाए और ले जाके कहीं फेंक दे, भूखा नहीं मरूंगा।
जैसे उठाए कोई और बिजनेस वगैरह कोचिंग वोचिंग सब बंद हो जाए, यूट्यूब के सब्सक्राइबर वगैरह सब चैनल हैक हो जाए, मान लो, भगवान ना करे, मान लो हैक हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, फिर भी मैं भूखा नहीं मरूंगा. This is what you have to and update. How you can do it, everybody, right? Okay? Yeah. मुझे अपने आप को सुधारने की आस है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, ज्ञान की तलाश है, और मेरा इसको जागरूक करना, इसको बढ़ाना, ये प्रयास है. तो कीप ऑन ट्राइंग एंड पुटिंग एफर्ट्स. राइट प्रगति, तुम्हारे नाम में ही डेवलपमेंट है, विकास है, प्रगति है, उन्नति है. तो ये हो गई अपॉर्चुनिटीज. एंड नाउ कम टू द चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स. द लास्ट पॉइंट. अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, विलेज एंड सिटी. विलेज में अगर मान लो कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख रहा है, तो उसको जो है उसकी बड़ी मजा ली जाएगी, अंग्रेज बनेगा, इंग्लिश सीखने जा, यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, क्या है ना. और सिटी में अगर आप सीखोगे तो बोलेगा अभी तक क्या कर रहे थे. अगर आप 25 साल की उम्र में सिटी में अंग्रेजी सीख रहे हो, कॉन्वेंट से पढ़ा, इतना पैसे खर्च किया, अभी तक क्या किया, इंग्लिश नहीं सीख पाया. शेम ऑन शेम फाइव तक. हाँ, आपको बहुत लोग कहेंगे, राइट, आपके साथ लेवल अलग है. शेम फाइव देयर इज अ सेंटेंस, आपसे कहा था, आई फील सो सॉरी फॉर यू, राइट. बट ऐसा अपने आप को बदलो कि लोग अब ना कहने पाए. शेम फाइव चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इस सेंटेंस का मतलब ये है. तो पीपल विल कॉल यू शेम फाइव, हे फाई यक. बट ये थोड़ा सा अलग चीज के लिए. यक मतलब छी, गंदा है कुछ. फाई मैन, शेम फाई. What are you doing? You are learning English in 25 years of age. What were you doing earlier? That's very sad. So people will say that, right? So you have to avoid it. So these are the threats, and there are multiple threats. Like for example, if you talk about 4P, अब जैसे कोई भी बिजनेस ही आप शुरू कर रहे हैं, 4P, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन. अब यहाँ तक कि चारों चीज में ही आप देख लीजिए कितना ज्यादा जो है कि आपको यू हैव टू फेस प्रॉब्लम्स. प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, सब कुछ हो गया, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है. प्रमोशन करा लिया, सही से प्राइस ही नहीं लिख पा रही है, प्लेस ही सही डिसाइड नहीं हो पा रहा. अब ये इंस्टीट्यूट जाके जो है खेत में खोल दो, कहीं बंजर जमीन पे. डू यू थिंक दैट यू कैन रन द इंस्टीट्यूट? यू कैन नॉट, राइट. आपको आरजे बनना है, रेडियो जॉकी बनना है. हम जहाँ के जो है भादो गांव चिल्ला रहे हो, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू 109, and today you are listening to this great music by Muhammad Abdullah. Nobody will listen that because nobody is there to just listen to you. That is why you have to decide all these things. Hope you understood, everybody. Hope you understood. Now, the last point I would like to tell you. Whatever your weakness, जो भी आपकी कमजोरी है, start working on that slowly and make it more and more deep. कोई भी कमी को हटाना ना, उस पे गहरे हो जाओ और उसको स्लो कर दो. मेक इट वेरी स्लो, डोंट रश टू इट. जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर केशव इज देयर, मैंने अभी वही बात बता रहा था. जैसे व्हेन ही स्पीक्स इंग्लिश, अब ये जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इनकी इंग्लिश गलत होती है, हम सब जानते हैं, आप सब लोग सुनते भी, ग्रामेटिकली दैट इज रॉन्ग. व्हाई दैट इज अ प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ही इज रशिंग, रश कर रहे हैं. तो आपको खुद एनालाइज नहीं हो पा रहा है, माई इंग्लिश इज राइट और माई इंग्लिश इज रॉन्ग. जैसे आपको एहसास हो जाएगा, अरे यार आई एम स्पीकिंग दिस रॉन्ग, यू कैन रेक्टिफाई इट. आप खुद उसे रेक्टिफाई कर पाएंगे. तो स्लो डाउन योर सेल्फ एंड मोर डीपर. पहले मैं आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले, आई यूज्ड टू स्पीक वेरी फास्ट. आज मैं फास्ट क्यों बोलता था? क्योंकि नॉलेज कम था. Okay, guys, so you are sitting, ladies and gentlemen, and I can see that it's a very exciting moment, ladies and gentlemen. मोहम्मद अब्दुल्ला, ladies and gentlemen. 3-4 बार वही सेंटेंस रिपीट करता था, तो इतनी फास्ट बोलता था, लोगों को लगता था, अरे माय गॉड, व्हाट अ, देखो यही जैसे ऐसे ही, ओह व्हाट अ स्पीकर, व्हाट अ पर्सनालिटी. उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये जब तक मैं करता रहूंगा तब तक खुद को रेक्टिफाई नहीं कर पाऊंगा और खुद को इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा. तो मैंने आपको स्लो कर दिया. आई मेड माई सेल्फ स्लो. और फिर उसके बाद डेप्थ में गया. तो डेप्थ में मैं जब गया तो मैं बहुत कुछ पाया. देखा कि पूरी माइनिंग, पूरी खादान पड़ी है. यहाँ से एल्यूमिनियम निकालो, यहाँ से हीरा निकालो, तांबा निकालो, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कुछ भी निकालो, इथेन, मीथेन, हाँ कुछ भी निकालते रहो बढ़िया तरीके से. ऑलराइट, एनर्जी, मोटिवेशन, निकालते रहो.
राइट केशव? तो आपको क्या होना है अभी? डीप जाना, कैसी स्टोरी जाना है डीप? हावड़े से बुराई करनी, जैसे भी से नहीं करो। First of all, slow down and deepen yourself, right? When you speak, you have to understand. You are also very fast, Shifa. आप भी बहुत fast हो. Slow down. Earlier, Dhruv was very fast, but Dhruv ने बहुत अच्छा काम किया. Yesterday, I conducted his interview. That was amazing. बहुत अच्छा काम किया Dhruv ने. And that was amazing. I hope you can do it. आप लोग कभी-कभी अपने आप को ना एक बार बोलो. Last point I would like to tell you. कैटेगरी बना दो. कैटेगरी में देखो कि कहाँ आप सही से अपने आप को वो बैलेंस कर पा रहे हो, कहाँ से एनालाइज कर पा रहे हो. Hello ladies and gentlemen, Mohammed Abdullah this side. So let's start talk about something very special. Hello ladies and gentlemen, Mohammed Abdullah talking about something very special. Hello ladies and gentlemen, Mohammed Abdullah talking about something very special. Hello ladies and gentlemen, talking about very special. Hello ladies and gentlemen, Abdullah here talking about something very special. तो अलग अलग टोन में बोलो, अलग अलग स्पीड में बोलो, अलग अलग लहजे और अंदाज में बोलो. उसके बाद देखो, आप खोल के बोलो, आप बंद करके बोलो. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब्दुल्ला दिस साइड. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब्दुल्ला दिस साइड. आप बंद करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, कोई दिखेगा ही नहीं. When you close your eyes, there is nobody. Your confidence will be at a extra pro level, ultra level. Okay? Hope you understand everyone. Thank you. Any question for me, please now? So it was short and this is, excuse me. So just rectify yourself and play good roles and different roles. I think you can do that. I think you can do that. सर, Yes. Yeah? Rectify yourself, right. और ये जो आपको आदत लगी है मुझे मेरे चेहरे को देखने की, इस आदत से हटो, राइट, और खुद को इम्प्रूव करना शुरू करो. हाँ, ये चेहरा वगैरह तो बदलता रहेगा, एक आप ही हो जो नहीं बदलोगे. चेहरा बदल जाए सब की जिक्र नहीं, लेकिन आप ही ना बदले. तो बदल डिपेंड कोर्स रिलेटेड टू earlier we discuss कि आपने बोला कि साइकिल है, आप में ब्रेक लगाना जरूरी है अभिषेक से, कि अगर मेरा शेड्यूल है या मैं पर्सनल ब्रेक ले जाऊँ. पर हम लोग यही सोचते हैं ना कि अभी जो हमारा टारगेट है वो फायदा हम फुलफिल कर ले से ब्रेक लेंगे. तब तक अगर हम जो है पागल हो गए तो सर आप ध्यान दीजिएगा. नहीं, साइकिल के चक्के में क्या है ना, अगर साइकिल के चक्के में ब्रेक भी है ना, तो साइड स्टैंड भी होता है साइड स्टैंड लगा लो. और साइड स्टैंड भी होता है, तो उसमें फिर पैडल भी होता है. नहीं नहीं, लोग ब्रेक क्योंकि उनको नहीं ना तब पहुंचना पहला टारगेट. मैं आपको बता दूं, 40 साल तक आप ब्रेक नहीं लिए, फिर भगवान ब्रेक ले लेगा, बाल वगैरह तब तक निकल पड़ेगा पूरा. आपका एयरपोर्ट इधर एयरपोर्ट तक आती तो हुआ. तो क्या बहुत उन लोग को होते कि अभी नहीं लेंगे, अब दिया कर. मैं आपको एक चीज बताऊं, यूपीएससी एस्पिरेंट अभी मेरा 3-4 लोगों से बाला पड़े हुए, 2 इधर लगे भी हुए हैं. ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने नहीं आ रहा. सॉरी नाम नहीं लूंगा, उधर कैमरा है. ये नहीं आ रहे थे इंटरव्यू की प्रिपरेशन. एक ही वाइब पुश मार के धक्का मार के लेके आई, क्योंकि ही वाज वेरी इंट्रोवर्ट और 2 बार इंटरव्यू पे फेल. पढ़ने में एक्स्ट्रा लेवल प्रो, पढ़ने में एक्स्ट्रा लेवल प्रो, लेकिन लोगों ने क्या किया, समाज को टाइम नहीं दिया, दोस्ती में टाइम नहीं दिया, सोशलाइजेशन टाइम नहीं दिया. ऐसा था ये दोनों गाल जो टक 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 काँप रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, अपनी बातें कह नहीं पा रहे हैं. तो मेरे ख्याल से जिंदगी में सब कुछ जरूरी है ना. मतलब व्हाई टू सिट इन द क्लोज रूम एंड स्टडी ओनली बुक्स, व्हाई टू रीड ओनली बुक्स. किताबों को जितना पढ़ रहे हैं, कभी हमें भी पढ़कर तो देखिए, शायद किताब से ज्यादा हम बता पाए. वी हैव टू एक्सप्लोर. एग्जैक्टली. ओ क्लास 8th में देयर वाज अ चैप्टर इन हिंदी, घुमक्कड़, घुमक्कड़ आदमी, कुछ ऐसा था. घुमक्कड़ जिज्ञासा है ना, पता नहीं आपने थोड़ा ज्यादा टफ कर दिया. हाँ, कुछ सिंचा घुमक्कड़ आदमी था ना. हाँ, घुमक्कड़, वो तो मकर जिज्ञासा देख रहा है, बस जवानी क्या, जिसमें कहानियां ना हो. जिसमें कहानियां ना, लेकिन तुम्हारी ज्यादा कहाँ ठीक है. तो ये भी थोड़ा लफड़ा हो जाता है. ठीक है, कहानियां ज्यादा ना होने पाए, जा लिमिट में, है ना. इनकी देखिए कोई कहानी नहीं है. जैसे मैं किसी भी पढ़े लिखे समाज में अपनी बातें रख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मैं डांस बार में उन लोग के सामने डांस भी कर सकता हूँ. तो मैं दोनों बैलेंस कर सकता हूँ. मैं आईएएस के बीच में भी बैठ सकता हूँ और मैं क्लब वालों के बीच में भी बैठ सकता पैरेंट्स ही कर पाता है, उंगली चला जाता है. हूँ. दिस इज रॉन्ग. उसमें क्या होता है, खुद जो है पर्सनैलिटी बड़ी सीरियस हो जाती है. व्हाई टू डू दैट.
ठीक है, अगर हम किताबों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो हम क्लब में जाएंगे तो वो हमारे भी एक अलग ही मेंटालिटी है। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। वो तो हम उसे रॉन्ग वे में ही इससे सोचेंगे ना सर। मैं जहाँ पे कोचिंग थी, अभी जहाँ कोचिंग है यूपी में, वहाँ से आधा किलोमीटर पे मार्केट थी। आप मानिए कि 1.5 साल तक मैं मार्केट नहीं गया था। 1.5 साल तक। व्हाई डिड आई नॉट गो? मैं क्यों नहीं जाता था? कोई देख लेगा, बोलेगा अब्दुल्ला सर मार्केट में घूम रहे हैं। अपनी ही सोच डेवलप कर लेना, रिजिड बना लेना अपने को, मार्केट नहीं जाना, कहीं आइसक्रीम ना खाना, कहीं गोलगप्पे ना खाना। फालतू। जहाँ मन के जो मन के खाओ पियो मस्त रहो, खिले, है ना? अब अभी लाइक क्या हुआ, आई वाज टेकिंग डिनर इन जामा मस्जिद। सॉरी फॉर द वेज पीपल, जामा मस्जिद स्पेशली इज फेमस फॉर नॉन वेज। सो आई वाज हैविंग डिनर। अब डिनर ऐसे ही मैं रोटी तोड़ा, तब तक पीछे से कोई आया, अब्दुल्ला सर, सर 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 आई नीड वन सेल्फी। हाँ, हकीकत बता रहा हूँ। अब्दुल्ला सर, सर आई नीड वन सेल्फी, सर सर एक सेल्फी प्लीज। तो मैं कह रहा आराम से थोड़ा, क्या है सेल्फी वेल्फी ले लो भाई। सेल्फी लिया, उसके बाद थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर मैं, तो मेरे सामने कोई बैठा था, आप क्या हैं? मैंने कहा कुछ नहीं हूँ मैं, थोड़ा बहुत जो है टीचिंग उचिंग करता हूँ मैं। तो पीपल डू लाइक दिस। उसके बाद नॉर्मल हो गया मामला। अब उसी पे कोई रहे तो काले काले लोग को लेके थोड़ा सा खा रहे, और सही है, सेल्फी नहीं मिलेगी। तो उसको चाहे तो, हाँ, उसको चाहे तो बड़ा टफ बना दे और चाहे तो ईजी बना दे। ठीक है, फाइन। अभी कल ही एक लड़का बेचारा आया, और वहाँ से स्पेशली ही केम फ्रॉम गोरखपुर टू मीट मी। और सलमान से पूछा सर कहाँ है? वहाँ गया, वहाँ से फिर सदप मैम ने यहाँ भेजा, पूछा सर कहाँ है? तो बोला सर अंदर है मिलो। अब वो आया डायरेक्ट, सर, अब पकड़ा और रोने लगा। मैंने कहा ठीक है, डोंट क्राई डियर, व्हाट हैपेंड? कहा नो सर, यू विल नॉट अंडरस्टैंड माय फीलिंग। मैंने कहा मैं फीलिंग तुम्हारी सच में समझ नहीं पाऊंगा, बट एनीवे। तो ही स्टार्टेड कराइंग और रोता रहा पकड़ के। फिर मैंने पूछा रो क्यों रहे हो? कह रहा मतलब आपको देख रहा हूँ, आपको छू रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे भी लोग हैं, और मैं अपनी वैल्यू उतनी नहीं समझता हूँ, बट लोग इतना पता नहीं क्या क्या बना के रखे हैं। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड वी क्राइड वेरी मच। तो अब ये भी है एक, उसको भी इंजॉय कर लिया मैंने। फिर उससे बाहर निकला तो उसके साथ फोटो तो खिंचा के उसके मोबाइल में फोटो 2-4 दे दिया, वो भी इंजॉय कर लिया। दीज आर द थिंग्स आई एम टेलिंग। एनीवे, मेरी बात खैर इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सो स्टार्ट डूइंग इट एंड इंप्रूव योरसेल्फ एंड यू विल फाइंड द बेस्ट, राइट? So thank you very much, and start doing self introspection and talk about the things. And today